Hi everyone, welcome to the Meet the Toppers. Uh, this is, मैं ऐसा बोलूँ तो this is like season 2. Last year we did Meet the Toppers with our toppers all along. We already have Kushagra, and we also have Kumar Satyadarshi with us. So the plan is, जैसा कि हर बार होता है, हम लोग ये करेंगे कि we'll take introductions. कुछ questions already आए हुए हैं लोगों के. So what I'll be doing is I'll be asking those questions to Kushagra and Kumar Satyadarshi alternate करके, and उसके बाद आप सबको मौका मिलेगा, जिस जिसको question पूछना हो वो please अपना हाथ raise करे and आप questions पूछ सकते हैं. I'll be unmuting you. आपको मैं unmute कर दूंगा and उसके हिसाब से ही सारी चीजें हो जाएंगी. ठीक है? So let's get started. It's about time. Let's see. Kushagra, are you there? You can unmute yourself. Yes, sir. Yes, sir. Hey, Kushagra, how are you? Sir, I'm fine. Okay, let's see. Kumar Satyadarshi, you there? Am I audible? Satyadarshi, आवाज बहुत कम आ रही है. You're not audible. And if you can turn on your volume a little bit. Yes, sir. Yeah, you are. We can see you. Yes, sir. Am I audible now? Yeah, you are audible now. Okay, sir. Absolutely, that's great. So welcome to the talk show. I hope you guys are ready with all the questions. इतने सारे questions होते हैं. You must have seen last year. बहुत सारे लोग के साथ हुआ था. इस बार तुम्हारी बारी है. That's the beauty of it. Every year things change. If you are listening as viewers, तो आप जो सुन रहे हैं हो सकता है अगले साल हम आपका इंटरव्यू ले रहे हो. So let's start with Kumar Satyadarshi. Introduction से start करते हैं. Yes, sir. ठीक है? Okay. Go ahead. I am Kumar Satyadarshi. All India rank 11 JEE Mains last year, and I'm from Bihar and Begusarai. I am in resonance from since class 11, and I studied there for 2 years. Okay. Kumar Satyadarshi, so what all क्या-क्या खेलते हो, क्या-क्या किया है जिंदगी में, कुछ और बताओ. I usually used to play cricket. I was in cricket team in my school, so Okay. last 3 year कोई टच नहीं है क्रिकेट से अभी तो. नहीं अभी खैर अभी चीजें और बदलेंगी तो शायद क्रिकेट से टच वापस आ जाएगा आईआईटी में तो. That's true. Okay. Kushagra, if you can have your introduction also. Yes, sir. Good morning, sir. I'm Kushagra Gupta, and I'm a student at IIT Delhi. And I studied with resonance from class 11. My rank in JEE Mains was 72, and JEE Advanced was 109. And सर अभी लास्ट 2-3 साल से तो कुछ खेला नहीं है, वरना बैडमिंटन अच्छा लगता. अच्छा लगता है. Okay, that's good. So fundamentally, let me share who I am. मैंने अपना इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो हमारे आज के मीट द टॉपर्स के रियल गेस्ट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन पहले होना जरूरी था. So I'm Ajay Nagar. I'm the vice president for IT and junior division here at Resonance. And this is a unique opportunity where you will be able to ask your questions directly to our toppers. You need to raise your hand. Raise a hand का जो फीचर आता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप अपना raise a hand feature करें so that you would be able to really ask the question. Okay, so we'll start with the questions, and I'll give the first opportunity to Kushagra. The question is from Aman Singh. Have you qualified Olympiad, and how can I represent India? Can you give some tips
And can you tell how to study for IJSO? सर ये काफ़ी एक अच्छा सवाल है जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो सर ओलंपियाड्स में रिप्रेजेंटेशन का जो प्रोसेस है वो 4 और 5 स्टेजेस वाला ही प्रोसेस है कि पहले फर्स्ट राउंड होता है ऑब्जेक्टिव, फिर सेकंड राउंड सब्जेक्टिव, फिर कैंप और फिर ट्रेनिंग और फिर रिप्रेजेंटेशन। तो उसका तो वही प्रोसेस है। और ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स 8th 9th क्लास से चालू कर देते हैं। तो जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए स्पेसिफिकली वो लोग जो 10th क्लास तक की NCERT होती है और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज के उनसे ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं। और फिर जब 11th 12th में आते हैं तो सीनियर ओलंपियाड भी होता है और मैथ्स ओलंपियाड सारी क्लासेस के लिए कॉमन होता है। Okay, okay. So anything specific जो कि करना चाहिए for Olympiads, to prepare for Olympiads? Other than पढ़ाई तो करनी पड़ती है। सर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वो पैटर्न का आइडिया देते हैं। और सर जूनियर साइंस ओलंपियाड में जैसे जो रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है। तो Okay. वो कर सकते हैं। Okay. Thank you, Kushagra. That was a great answer. सतरशी आपसे सवाल है अरविंद महिंद्रा का। Can we take a drop for getting into IIT? I have an aim to get an aeronautical engineering in IIT only. For that, I have to do more and more efforts. Please help me. So, क्या tips देना चाहेंगे? बेसिकली अगर ऐसा है कि अभी उसका प्रिपरेशन मतलब अगर अरविंद का अगर प्रिपरेशन अभी अच्छा है इन द सेंस कि वो उस चीज को अचीव कर सकता है, देन दैट इज फाइन। गेटिंग ड्रॉप थोड़ा सा वो मेंटली भी आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है इन दैट सेंस कि आप आगे का फिर आपको लगता है ना कि 1 साल फिर आपको उसी में देना होगा लाइक दैट। सो अगर एरोनॉटिकल आई डोंट थिंक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मिलने के लिए आपको बहुत अच्छी रैंक भी चाहिए। इट लाइक कि अगर आपका डिसेंट रैंक भी है देन यू आर eligible for that particular branch. So just focus on मतलब आपको अपने रैंक को एक डिसेंट रखने का, कंसिस्टेंट रखने का आपको कोशिश करना है। बात बाकी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ उसमें करना है। अगर आपको एरोनॉटिकल लेना ही है तो दैट्स व्हाट, बस डिसेंट आपको पढ़ाई करना है। और अगर आपको सही में लग रहा है नहीं आपको है तो फिर यू कैन टेक ड्रॉप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको फायदा ही करेगा 1 साल बाद। Okay, great. ठीक है. So let's give an opportunity to our viewers. Let's see. We have Sambhav Sharma. So I'm unmuting you, Sambhav, and you can ask your question. Hello, sir. Hello. Am I audible? Yes, Sambhav, you're audible. So my question is, how to be consistent in studies while preparing for IIT JEE? Because And this question is to Kushagra or Yes. to okay, Kushagra. to anyone, sir. Okay, ठीक है. चलो दोनों के साथ बात करते हैं. There's a pretty standard question. Can you repeat your question, Sambhav? How to be consistent in studies, because there will be ups and downs while the studies. So how to be consistent in studies? How to be consistently working for a specific goal? So Kushagra? यस सर मतलब जैसे जो हम लोग की प्रिपरेशन होती है उसमें अप्स एंड डाउन्स तो रहता ही है, तो उसको तो हम लोग नहीं मतलब हटा सकते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग का कैसा भी चल रहा हो करंट स्टेटस, हम लोग को हमेशा जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देते रहना चाहिए। तो इससे ये होगा कि भले ही हम लोग का अगर उस टाइम पे पीक नहीं है फिर भी हम लोग जो पढ़ाया जा रहा है उसको मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के बाद में कवर कर पाएंगे। तो बाकी इससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि क्योंकि सर हम लोग के टाइम पे जैसे 2-3 बार कोविड आया तो हमेशा पोस्टपोन हो जाता था एग्जाम। तो हम लोग के साथ भी ऐसा होता था। लेकिन एट द एंड अगर थोड़ा बहुत डाउन साइड में भी चल रहा है तो भी वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा मतलब नेगेटिव सेंस में। तो बस कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना चाहिए मोटिवेटेड रहने के लिए। बाकी अपनी हॉबीज थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करनी चाहिए, थोड़ा कुछ टाइम फ्री टाइम। Okay. Satyadarshi, what do you suggest? What would you suggest?
बेसिकली अगर कंसिस्टेंसी ऐसा होता है, जैसे अप्स एंड डाउन का बात है, तो हो सकता है आपका कोई पर्टिकुलर इंटरनल एग्जाम ऐसा हो इसमें आपको मार्क्स ना आए, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है। बट द थिंग इज आपको 2 साल के बाद के रिजल्ट, इफ यू आर इन क्लास 11, तो आपको 2 साल के बाद के रिजल्ट को देखना, ना कि वो तो आपका हर बार अच्छा खराब होते रहेगा। फॉर कंसिस्टेंसी आपको एक टाइम टेबल तो पहले करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है, और Very good. उसके तरह आपको अटैच रहना पड़ेगा। ये नहीं कि बस आज किए 2 दिन के बाद, वो होता है इन जेईई प्रिपरेशन, आपको लगेगा कि 2 दिन के बाद फिर कुछ और कर लेते हैं, नॉट लाइक दैट। आपको जो आपने एक बार फिक्स कर लिया, आपका जो जिस टाइप का एक, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक माहौल होता है पढ़ने का, वो इतना देर पढ़ सकता है लाइक दिस दैट। तो आप वो पहचान लो पहले अपना, फिर लाइक दैट कि आप उसको ही फॉलो करते चलो। डोंट फॉलो टू, जरूरी नहीं है कि आप कोई हार्ड शेड्यूल फॉलो करो। आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपके सहायता मतलब सहूलियत हिसाब से हो रहा है, यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट थिंग, आप कंसिस्टेंट रहोगे। So that's great answers by both of you. Sambhav, so finally you have to create a plan जो कि आपके लिए काम करे, and that will give you and you'll be able to gauge कि आप consistent हैं उस timetable के हिसाब से है नहीं. So that's a very nice call. In fact, when I used to prepare for IIT and went to IIT Roorkee way back, actually वही है. It's, you know, everybody has 24 hours in a day, और 6 घंटे सोना है, 5 घंटे सोना है, वो एक अलग बात है. But yeah, that's how you have to understand कि कहाँ पर गलती हो रही है, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ रही है, rather than thinking अरे यार कंसिस्टेंट कैसे होते हैं, कोई ऐसा है नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसको लेके हम लोग कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे, right? So let's take another one of our viewers who can ask the question. Let's see, we have Sachin Kumar. I'm unmuting you, Sachin. Hello, sir. Am I audible? Yes, Sachin, you are audible. Please ask your question. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो है टर्म 2 मेंस एडवांस किसी की डेट नहीं निकली है, लेकिन कभी भी आ सकती है। तो मैं चाहता हूँ अब मैं सेल्फ स्टडी करूँ, लेकिन सर भी सपोर्ट करते हैं, क्लासेस डेली लगाते हैं। तो मैं उलझन में हूँ सर, सेल्फ स्टडी करूँ या सर के पीछे चलूँ सर। काफी अच्छा सवाल है सचिन, ये शायद काफी लोगों के साथ ये, क्योंकि टारगेट डेट है ही नहीं। सो सत्यदर्शी, एक और सर सवाल है सर। पहला इसको आंसर कर देते हैं, उसके बाद दूसरा सवाल पूछ लेंगे। तो सत्यदर्शी, व्हाट वुड यू सजेस्ट हियर? सचिन इज काफी कंफ्यूज्ड है कि क्या करे, मतलब अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़े या सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे? नहीं, अगर आपको अभी कुछ देखो, पहला बात ये है कि अगर टीचर्स कुछ बोल रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ के, मतलब उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को समझ रहे हैं। तो बात ये है कि आप सेल्फ स्टडी तो करना नेसेसरी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बट यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन व्हाट आपको सजेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझा होगा, तब आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। तो लाइक दैट। और दूसरी बात ये है कि जो अनसर्टनिटी इस साल है, वही पिछले साल भी थी, मतलब पिछले साल थोड़ा सा कम थी, क्योंकि उस अभी तक मेंस का सब कुछ आ चुका था, कब क्या होना है। बट द पॉइंट है कि हो सकता है कि आप उसको ऐसे लें कि यार टाइम बहुत ज्यादा, मतलब बहुत आगे बढ़ गया, लाइक दिस दैट। आप उसको दूसरे तरीका से लो कि अपने पास टाइम थोड़ा सा बढ़ गया, जिसके कारण कि अपना प्रिपरेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है, लाइक दैट। सो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो वो ज्यादा आसान पड़ेगा एज कम्पेयर टू कि उसको आप एज ए टेंशन लो कि नहीं यार इतना बढ़ गया, आप क्या करेंगे। तो नॉट लाइक दैट, गो विद द टीचर। और अगर आपको टाइम मिल रहा है, सो आप सेल्फ स्टडी फिर करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सचिन। सचिन, आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। सर मतलब उन दोनों भाइयों से है, तो उन्होंने मतलब बोर्ड्स के समय पे बोर्ड्स पे फोकस किया था या मेंस एडवांस पे? उन्होंने बोर्ड्स पे फोकस किया था या मेंस और एडवांस पे, ऐसा ये सवाल है? यस सर। सो कुशाग्र, व्हाट वुड यू सजेस्ट, किस पे फोकस किया था? यस सर अब जैसे हम लोग के टाइम पे तो बोर्ड के एग्जाम ऑल्दो कैंसिल हो गए थे, लेकिन इनिशियल फोकस तो मैंने जेईई मेन और एडवांस पे रखा था अपनी प्रिपरेशन करते टाइम। पर जैसे हम लोग को पढ़ाया जाता था, तो हमें जितना भी 12th का सिलेबस होता था, 11th का सिलेबस होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, वो बहुत अच्छे से कवर करा देते थे, और बोर्ड रिलेटेड वर्कशीट्स भी दी जाती थी, तो बोर्ड वैसे कवर हो जाता था। और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के 4-5 महीने पहले से हम लोग अच्छे से पढ़ना चालू कर देते थे। तो फोकस तो दोनों पे रहा पढ़ाई के दौरान, लेकिन अब एग्जाम कैंसिल हो गए तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो और लॉजिकली ऐसा नहीं लगता कि बोर्ड एग्जाम्स में रिलेटिवली कॉम्प्लेक्सिटी लेवल काफी कम होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है पेपर ऐसा ही आएगा, और
मेरा मानना ये है कि आप उसको कॉम्प्रेहेंड कर सकते हो, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन वाली फीलिंग वापस आ जाएगी 10th वाली, लेकिन हाँ आई थिंक सो रिलेटिवली कम टाइम में काफी कुछ फोकस किया जा सकता है. सो दैट्स माय सजेशन. सो दैट्स द केस सचिन. ठीक है, ओके. Let's take another viewer. Ayush Gupta, I'm asking you to unmute. Good morning, sir. Good morning, Ayush. My question is that कि जो बैकलॉग बन गए थे कुछ 1 या 2 चैप्टर इनिशियल डेज में, तो उनको इस टाइम पे कैसे कवर करना है, क्योंकि अभी कोर्स भी चल रहा है, वो भी चैप्टर से और एग्जाम भी आने वाली है. Okay, Kushagra, what would you suggest here? सर जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो जब हमारा रिवीजन प्लानर चलता है तो जब वो चैप्टर आ रहा हो तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको तभी कंप्लीट कर सकते हैं अगर पहले का छूटा हुआ है तो. और अदरवाइज अगर मतलब स्टूडेंट अगर 12th में है तो और एग्जाम दे रहा है और अगर 11th में है तो फिर जब छुट्टी वगैरह हो तब उस पर फोकस करके उसे बैकलॉग को हटा सकते हैं. और सर अगर ज़्यादा बैकलॉग है तो फिर उसे स्किप भी कर सकते हैं अगर अनरिलेटेड पोर्शन हो तो बाद में कवर कर लेंगे. हाँ, मुझे स्किप वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है. नहीं, एक्चुअली आई वुड सजेस्ट आल्सो कि सारी चीजें करके जाना कितना कर पाओगे वो वाली बात है. दैट इज आल्सो ट्रू. सत्यऋषि, व्हाट वुड यू सजेस्ट इन दिस केस? बेसिकली बैकलॉग है किसका, इसको पहचानना बहुत जरूरी है. इट मींस कि अगर कोई मान लो कोनिक्स है, ठीक है, और अगर बैकलॉग कोनिक्स में है तो फिर दैट इज गोइंग टू हर्ट, क्योंकि उसका थोड़ा सा ज्यादा ही क्वेश्चन आने लगता है मेंस या एडवांस में. सो उनको आपको कवर करना ही होगा. बट अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो उसका ज्यादा यूज नहीं है और ऐसा है जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लेटर सपोज, सो अब अगर ऐसा हुआ कि उसमें आपको बैकलॉग है या आपका छूट गया, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट सम मार्क्स. बट ऐसा है कि ठीक है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा. बट तो ऐसा है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका बैकलॉग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आगे कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट फिर मारना पड़ेगा वहां पे. ऐसा है. बट इफ यू थिंक कि नहीं ज्यादा दिक्कत नहीं होगा तो यू कैन स्किप दैट पार्ट आल्सो. Okay, ठीक है. So we have another question from Yash Pitalwar. How to speed up studying? अब ये question थोड़ा सा वो हो गया. How to speed up studying? Sadarshi, what would you suggest here? नहीं, स्पीड अप स्टडी वो रिलेटिव टर्म है थोड़ा सा, क्योंकि हाँ, इसलिए मैंने बोला. कौन बच्चा कितना पढ़ सकता है या उसके लिए क्या स्पीड है वो तो उस पर डिपेंड करता है. बट ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको 5 या मतलब 1 साल का सिलेबस आपको 6 या 8 महीने में खत्म करना, लाइक दैट, अगर आप उस टाइप से सोच रहे हो, सो डोंट गो इन हरी नहीं करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत पेशेंस का चीज है ये. मतलब एग्जाम अगर आपको सोचना है तो आपको धीरे धीरे करके चलना है. हर टॉपिक का क्लैरिटी आपको होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हर पार्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो. तो आपको अपना वो रिजिडिटी होता है ना कि आपका ये कंसेप्ट बहुत कॉन्क्रीट है, वो आपको बना के चलना है, ना कि सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे चलना है. क्योंकि अगर आपका सिलेबस 80% भी कंप्लीट है और आप उसमें बहुत स्ट्रांग हो, इट इज गोइंग टू गेट यू गुड रैंक इन जेईई. सो आपको बस अपने कंसेप्ट क्लियर और उसको कंक्रीट करने के ऊपर ध्यान देना, ना कि आपको जल्दी सिलेबस, और जो टीचर करा रहे हैं बस उसके हिसाब से आप चलते चलो, और नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट. उससे ज्यादा ना कुछ चाहिए ना कुछ कम. Okay, that's a good answer. Harsha Vardhan, I'm asking you to unmute. You can ask your question. Sir, am I audible, sir? You're audible, but the voice is a little scratchy and very low. So can you be a little closer to the mic? Okay, sir. That's much better. Please ask your question. Sir, actually, I'm having a question for 3 of you, sir. How to approach the questions with the concept you are getting from teachers, sir? Okay, Kushagra? Yes, sir. So that mostly the questions which come in the exam are from the concepts which we have covered in the class, but they are asked in a twisted manner that they cover 2 or more concepts. So I think the best way to do this is by practice. That by practice we understand the intuition behind the problem in which there are more than one concepts. So by practicing we can get familiar with the problems, and also we can see the problems of the past year JEE papers as they have asked. So they also
they always tend to put more concepts in one question. Okay. Satyadarshi, what would you suggest here? आई एग्री विद कुशाल इन वन टर्म कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो आपको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए, उससे आपको एक थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि क्या हो सकता है और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है उस चीज में। सेकेंड थिंग कि आपके पास सीट है, आप उसको लगाते हो तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट का ब्रशिंग तो होता ही है। सो जस्ट ट्राई टू फाइंड कि आपको किस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, क्योंकि आप जब सीट करोगे ना तो यू विल फाइंड कि आपको ये क्वेश्चन नहीं बना, और क्वेश्चन नहीं बने के कारण हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं हो या फॉर्मूला नहीं आ रहा हो आपको। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई यू आप किसी क्वेश्चन में क्यों फंस गए, और उससे आपको पता चलेगा ना कि आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा है या अच्छा है, तो उससे आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आएगा, ब्रशिंग अप भी होगा उसका। और ट्राई टू आस्क द टीचर कि इस हो सकता है जैसे होता है कभी आप जो चीज पढ़ते हो तो इंस्टेंटली वो आपके दिमाग में ज्यादा अच्छा रहता है बैठा हुआ, धीरे धीरे वो निकल जाता है। तो ट्राई टू आस्क योर टीचर कि आप क्या मुझे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड या कुछ बता सकते हो कि इस टाइप का कहाँ मिल सकता है, सो आई कैन डू दैट। वो भी आपको हेल्प करेगा फिर। Okay. So Harsha, my take on this is very simple. When we do this, ये जो journey होती है 2 साल की, that journey is very simply a pattern recognition journey. मतलब different type के questions आएंगे, different type की चीजें होंगी, different, ठीक है, concept सीख लिए, concepts actually क्या होते हैं, और total number of concepts कोई बोलेगा तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि हैं कितने, ऐसा कुछ है नहीं। और there is a very important part कि जब एग्जाम हो रहा है या एग्जाम के टाइम पे व्हेन यू आर रियली बीइंग जज्ड कि यार आप कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो कंसेप्ट याद आया ही नहीं या समझ में ही नहीं आया, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आपसे कुछ नहीं होगा। और ऐसा है नहीं कि कोई आकाशवाणी से कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। जो कोर कंसेप्ट है वो एक तरीके से यू हैव टू लर्न एंड देन अनलर्न अगेन and then again relearn in a way कि क्योंकि आपको जैसा सत्यदर्शी ने बिल्कुल सही कहा, इंस्टेंटेनियसली तो बिल्कुल ऐसा लगता है हाँ मुझे सब कुछ आता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल फॉरगेट, एंड ये नॉर्मल है, दिस इज अ टैलेंट वी ऑल आर बोर्न विद, तो ऐसा होगा ही होगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे सब कुछ याद रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, व्हाट विल हैपन इज जब मौका पड़ता है, जब क्वेश्चन सामने आता है, तो वो जो पैटर्न है दैट विल बी नोन टू यू। अच्छा हाँ, मुझे पता है इसमें क्या करना है, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड। अगेन कमिंग टू कुशाग्र's पॉइंट, जितनी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, दिस इज वेयर यू विल एक्चुअली बी मोर एक्वेंटेड, यू विल बी अवेयर अबाउट कि हाँ क्या होने वाला है, क्या करना है, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन कि चलता रहता है, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ठीक है। सो इट्स लाइक, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, you are like Arjun. Each one of you who's preparing is like Arjun, and आपके पास एक तरकश में एक और तीर आएगा पैटर्न का, अच्छा हाँ ये वाला, अच्छा ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है, एंड दिस इज हाउ थिंग्स रोल आउट, और इसी के हिसाब से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। शायद जिंदगी में यही चीजें आपको आगे और मदद करेंगी। यू नो, वंस यू गेट इनटू एन IIT, इट्स नॉट लाइक कि आपको बिल्कुल ऐसा ही कुछ आ जाएगा, नई चीजें एक्सपीरियंस करोगे, नए पैटर्न्स होते हैं। हम जो साइंस पढ़ रहे हैं वो भी फिर भी 11th एंड 12th है, आगे जो हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, वो और ज्यादा डिटेल्ड है, और ज्यादा चीजें हैं। So Sir, actually, I am having another question also. go ahead. Is our sheets are enough to crack IIT or NIT, or any other books also needed, like singing? Absolutely is what I feel, but I would still pass on the firm answer for Kushagra and Satyadarshi. What would you suggest, Kushagra and Satyadarshi? सर इन द शीट में जो एक्सरसाइज 2 और 3 होती है, वो बिल्कुल जेई और जेई से हल्का अबव लेवल की रहती है, और जो HLP है वो थोड़ा और हायर लेवल की रहती है। तो ये तीनों एक्सरसाइजेस मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहती है। और इसके अलावा अगर कोई बुक एक्स्ट्रा से करनी है तो जो जैसे HC वर्मा हो गई या फिर NCERTs हो गई केमिस्ट्री के लिए, उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता किसी की जरूरत है। और शीट ही इतनी लंबी होती है कि वही मतलब कंप्लीट नहीं हो पाती थी पूरी, तो That's true. इसलिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। Harsha, I'll give you a very clear picture. During my days, that was not the case. So we did not have this content really ready with us. We really had to, salvage some concepts from, say, books like Morrison Boyd, Finar for organic chemistry. HC Verma was there, thank God.
So then Resnick Halliday. But nowadays the content is pretty customized. Not even that I would say customized. It is crafted in a very nice way, and I am very positive and very confident in saying that this material is more than sufficient to really get you into an IIT and NIT. 100% sure about that. Okay. Thank you, sir. Welcome. Okay. So is it Sartha Nagar? I'm just unmuting you. Is it Sarita? Sorry, I cannot see that far. Yes, sir. Am I audible? Yeah, Sarita Nagar. Yeah, go ahead. You're audible. Please ask your question. Sir, my question is, सब बोर्ड्स के टाइम पे मेंस की प्रिपरेशन को कैसे मेंटेन करें? बोर्ड्स के टाइम पे मेंस की प्रिपरेशन को कैसे मेंटेन करें? ओके, सत्यदर्शी. सो मेंस अगर एडवांस करता तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, बट मेंस का ऐसा है कि आप ऐसा देखोगे कि मेंस एनसीईआरटी बेस्ड बहुत ज्यादा होता है. ओके, इफ यू डिड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप ये पता करो, आपको पता चल जाएगा कि मोर या लेस एनसीईआरटी बेस्ड बहुत है, और आपको कहीं ना कहीं बोर्ड में भी एनसीईआरटी ही आता है. अगर मैं सिर्फ मैथ्स और साइंस की बात करूं, तो आपको अगर जैसे इंग्लिश हुआ एंड अदर थिंग, तो वो आपको अलग से, जैसे होता है ना कभी कभी 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई या संडे को है, तो आप संडे आपके पास संडे 2-3 घंटा होगा ही होगा कि आप उसको टाइम दे सको, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, या फिर आपका कोई और एडिशनल सब्जेक्ट है तो. सो उससे आपको कोई इससे मतलब मेन से आपको कोई उससे दिक्कत नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि अगर आप उस कंसिस्टेंसी से चलते हो तो. बाद बाकी अगर आप मैथ और साइंस का देखो, तो इन दैट सेंस आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, वो आपको मेंस में भी हेल्प ही करने वाला है, तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू. बस इस टाइप से ही आप कर सकते हो. सरिता, आपको आंसर मिला? हाँ सर, आई हैव अनदर क्वेश्चन सर. अच्छा, पूछिए. सर, जैसे कि सबके कंफ्यूजन होता है कि लास्ट टाइम पे क्या पढ़े, तो मैं लास्ट टाइम पे मेंस के लिए क्या पढ़ना चाहिए, पेपर के लास्ट टाइम, पेपर के थोड़े दिन पहले. ओके, कुशाग्र. सर एक फॉर्मूला बुकलेट दी गई थी हमें, तो जेई मेंस के लिए तो मैं कहूँगा कि वो काफ़ी हेल्पफुल है लास्ट मतलब एग्जाम से 1 दिन या 2 दिन पहले पढ़ने के लिए. और अगर कुछ दिन पहले की बात है, तो जो हमने अपने नोट्स बनाए हैं हम उसे देख सकते हैं, और एनसीईआरटी का कुछ पोर्शन है जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स आते हैं, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इस टाइप वाले, तो उन चैप्टर्स को अच्छे से देख सकते हैं. बाकी सब तो क्योंकि हम लोग एडवांस की प्रिपरेशन के साथ पढ़ते ही हैं, तो एक्स्ट्रा से कर सकते हैं हिसाब से. नाइस आंसर कुशाग्र. आई थिंक सो वेरी स्पॉट ऑन. सो दैट्स ग्रेट. बट मैं एक ना मजेदार बात बताता हूँ. ठीक है, अभी देखो कुशाग्र और सत्यदर्शी तो अभी गए हैं आईआईटी. मैं पास आउट हो चुका हूँ आईआईटी से, तो मैं वो बताता हूँ. हम लोग अपने जो नोट्स बनाते हैं ना, ये मान के चलिए अपने ही नोट से पढ़िए, मतलब नोट्स बनाने हैं. ये देखिए, जेरोक्स से रहा के किसी के नोट्स ले लिए. ये बहुत जरूरी है. ये सब जो करना है ये कॉलेज में जाके कर लेना, क्योंकि वहां पर यही होता है. सिर्फ एक जना नोट्स बनाता है और उसी की चीजें जेरोक्स होती रहती है. बट जरूरी पॉइंट मेरा, मैं जो जिस पॉइंट को बताना चाह रहा था, जो कि कुशाग्र ने बहुत सिंपल तरीके से बताया, कि आप अपने नोट्स को थोड़ा सा देखिए. आप जब देखिए, हमारी 4 इंद्रियां हैं जिनकी तरह से हम सीखते हैं चीजों से. एक तो देखने से सीखते हैं, एक लिखने से सीखते हैं, एक पढ़ने से सीखते हैं, और एक सुनने से सीखते हैं. ठीक है. अब ऐसा कोई चीज तो लगी नहीं हुई कहीं पे कि आज सुबह जब मैं उठूंगा तो आज मैं पढ़ते हुए जो सीखूंगा वो मुझे याद रह जाएगा. ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, किसी को नहीं पता. नोबडी नोज दिस. ठीक है. तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपने चारों तरीके से वो चीज सीखी हुई है, भाई टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो आप सुनते हो, अगर आप पढ़ते हो खुद से, रीड कर रहे हो, चलो समझ में आया. लेकिन सबसे ज्यादा कमी आजकल मुझे दिखती है, वो है कि लोग ये जो पेन है यूज नहीं करते. हम लोग बहुत पेन यूज करते थे. मतलब मैं ये बता सकता हूँ, आई कैन रियली प्राउडली से कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा लिखने की आदत डाली है. आजकल मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड. एक्चुअली द पेन इज योर बेस्ट फ्रेंड. आई ऑलवेज से दिस. सो जितना हो सकता है यूज करिए. इनफैक्ट दिस विल टेक यू प्लेसेस. इवन आगे चल के भी आपको, आपके नोट्स जब आप बनाएंगे, यू आर गिविंग योर बॉडी एक तरीका दे रहे हैं, एक जरिया दे रहे हैं कि वो आपके अंदर जाए चीज. आप लिख रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, भले ही किसी से सुन के लिखना अपने आप में, और अपने शब्दों में लिखना अगर आपने शुरू कर दिया, तो मतलब आपको चीज आती है समझ में. वो तो फिर बाद में सिर्फ ये रह जाएगा कि
आपको जब एग्जाम हो रहा है तो आपको वो कंसेप्ट वापस याद आया नहीं, बट आप अपने आप को पूरा मौका दीजिए चारों इंद्रियों से सीखने का। तो प्लीज 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 फॉर एवरीवन, याद रखिए पेन इज योर बेस्ट फ्रेंड टिल यू आर प्रिपेयरिंग। हाँ, कॉलेज में जाके चीजें काफी अलग हो जाती हैं, बट तब तक तो आपका बेस्ट फ्रेंड पेन ही है। ठीक है, चलिए, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू just not able to see, it's a little far off. Is it Kunal Shukla? Kunal, I've asked you to unmute. You can ask your question. Yes, sir. My question is, good morning, everyone. My question is, did you do anything for building up base or foundation for IIT in class 10? Can you repeat your question, Kunal? I just was not able to gather that. Yes, sir. My question is, did you do anything for building up base or foundation for IIT in class 10? Okay. Satyadarshi? हाँ, मतलब ऐसा है कि प्रिपरेशन का तो शुरुआत ऐसा था कि 9 से हो रखा था। इट मीन्स कि थोड़ा मोड़ा आगे का चीजें को गैदर करना था। तो यस, फाउंडेशन तो एक तरीके से अगर उस चीज को सोचें तो फाउंडेशन तो था 10th क्लास में थोड़ा सा। So क्या शुरू करना भी चाहिए? मतलब खैर करना तो चाहिए ही, it is not hurting. So ऐसा है कि मतलब कभी-कभी क्या होता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे भी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th में अचानक इस सिलेबस को कोप अप कर पाते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि 10th के बाद जो 11th का सिलेबस में जो गैप है, दैट इज लिटिल बिट हार्ड टू कोप अप। इन द सेंस ये कि 10th का बोर्ड देके आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आपके दिमाग में एकदम से नहीं है जेई का लेके, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हो, वो रिलैक्सेशन थोड़ा सा आपको हर्ट करेगा आगे चल के। बट प्रॉब्लम ये, अगर आपके दिमाग में 10th क्लास से ही इसके लिए लेके है तो आपको जरूर करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव इनफ टाइम। मुझे ऐसा लगता है 9th में इनफ टाइम होता है कि आप स्कूल का पढ़ के करके आप बाहर का मतलब जेई के लिए भी कर सकते हो। यू शुड डू। बिल्कुल। So कुणाल, मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा कि मैं वो शख्स हूँ जिसने 10th पार मतलब एग्जाम्स देने के बाद तक भी आईआईटी का नाम तक नहीं सुना था। मुझे यही नहीं पता था आईआईटीज होते भी हैं। मैंने कई बार बोला भी है ये, पहले सीजन्स में भी पहले भी बोला है। जब मैंने पहली बार स्केलर और वेक्टर सुने थे, मुझे लगा था क्या दो नए एडमिशन में लगता है, और बड़ी इंटरेस्टिंगली मुझे ऐसा लगता था यार क्या नाम रखे हैं यार, क्या ये होते हैं नाम, मतलब क्या अजय अजय करके नाम रख दिया। बट बाद में जब समझ में आया कि स्केलर और वेक्टर में पूरी दुनिया घूमनी है मेरी अगले 2 साल। सो यस, फाउंडेशन बहुत जरूरी है। अगर और अच्छी चीज है ना, आप सही तरीके से सीखो। आज तो अपॉर्चुनिटीज और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। सीट्स बढ़ना कंपटीशन को कम नहीं कर रहा है। तो आप सोचो कि अच्छा सीट्स भी तो बढ़ रही है, लेकिन आप सोचिए अवेयरनेस काफी ज्यादा है। तो अवेयरनेस के हिसाब से आप अवेयर रहिए और करते रहिए। मतलब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप 1 घंटा 2 घंटा भी फाउंडेशन लेवल पे भी निकाल लेंगे ना, बहुत होता है। 1-2 घंटा तो मैं कहूंगा बहुत है, अति है। खैर, मतलब हर एक जना अलग है। मैं खेलने कूदने में कुछ ज्यादा ही था आगे, तो क्योंकि मुझे नेशनल्स खेलने होते थे, मुझे चीजें होनी थी, बट इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता था 10th तक। तो मेरे पास तो समय ही नहीं होता था, कभी सोचा भी नहीं था। सो बट फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज बोथ साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। सत्यदर्शी ने बताया कि हाँ जरूरी है, मैं कह रहा हूँ हाँ, लेकिन अगर नहीं हुआ है फाउंडेशन तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर सकते। कोप अप करने में दिक्कत आएगी, बट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू Ananya Srivastava, asking to unmute. Yes, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Sorry, good morning. I have 2 questions to put up, sir. First one being to both of them. What are the specific patterns you guys suggest that we should follow while analyzing our mock tests? Okay. Did you get Kushagra and Satyarshi, did you get the question? Yes, sir. तो अगर पैटर्न का बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 टाइप का आपका उसमें होगा। एक जो आपसे क्वेश्चंस हो गए होंगे, सेकंड कि आपसे क्वेश्चन हो नहीं पाए होंगे बट आपने कोशिश किया होगा लाइक दैट कि हाँ लग रहा था कि हो जाएगा, एंड थर्ड वन कि आपको एकदम समझ में नहीं आया। सो फर्स्ट फोकस ऑन दैट पार्ट वेयर यू कर दे तो आप गए बट आपसे हो नहीं पाया, क्योंकि वहां पे आपको कहीं ना कहीं
ऐसा नहीं हुआ कि आप एकदम ही उसमें खाली हो, ब्लैंक नहीं हो आप उसमें। इसका मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा-सा कमज़ोर है वो कॉन्सेप्ट। तो ट्राई टू फर्स्ट कंप्लीट दैट पार्ट। फिर तीसरा वाला जो पार्ट है आपका, इसमें आपसे एकदम नहीं हुआ। देन सी दैट पार्ट कि आपको वो क्यों नहीं हो पाया आखिरकार, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट? कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट मिसिंग होगा। कभी होता है फॉर्मूला मिस हो जाता है, तो लाइक दैट। सो वो फिर तीसरा पे पहला वाला भी छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि बन गया क्वेश्चन सो ठीक है बस खत्म। अगर पहला वाला क्वेश्चन बना भी है तो ट्राई टू थिंक व्हाट आर द मॉडिफिकेशन दैट कुड बी डन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में और क्या-क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन आता है, आप जेईई का भी पैटर्न कभी-कभी देखोगे, क्वेश्चन्स आर कॉन्सेप्ट सिमिलर बट सम मॉडिफिकेशन हो के आ जाती है। सो वो आपका होना चाहिए। That's a good way of putting it, Satyarshi. Very nice way actually. Kushagra, you were also suggesting something? यस सर, एक इन तीनों क्लासिफिकेशन के अलावा एक बहुत ज़रूरी ये है कि जो हमने गलत किया है, मतलब जिसमें हमने सिली मिस्टेक करी है सर, क्योंकि लास्ट में जब हम एग्जाम देकर आते हैं तो जो सिली मिस्टेक है वो सबसे ज़्यादा खराब लगती है, क्योंकि हमसे बनने वाला होता है क्वेश्चन। तो हम जितने मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं उसमें जो भी हमारी गलत हो रहे क्वेश्चन, जो हम लोग सही कर सकते थे बहुत आराम से, कि हम लोग ने कोई फैक्टर मिस कर दिया या फिर, तो उन क्वेश्चन को हमें थोड़ा पकड़ना चाहिए कि ऐसा हमने क्यों किया। Any specific things like do's and don'ts which we used to talk, let's not try physics first, or let's not try maths first, let's try chemistry first. I mean, assuming chemistry is a relatively simpler subject, but sometimes advanced ki baat nahi, main JEE main, I'm just talking about JEE main right now. Any pattern that you guys have followed in your journey, like okay, I'll be attempting chemistry and then aisa kuch? सर सर मैं मैथ्स हमेशा लास्ट में करता था, और सर मेरा जब फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था मेरे को, तो मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता था क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो मेरे को उसमें कंफर्टेबल लगता था। तो मैं तो कहूँगा कि जो सबसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, भले ही मैथ्स हो, उससे स्टार्ट करना चाहिए। और अगर सब में बराबर लग रहा है तो केमिस्ट्री से करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री जल्दी हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हो जाता है। That's good. Satyadarshi, any pattern that you followed? Because this is a very good question and this is pretty standard. Ki yaar, how did you think about attempting the paper? That's a tricky area जहाँ दिक्कत होती है हर एक को. ओके, सो ऐसा था कि जैसे 3 घंटे का एग्जाम है तो फर्स्ट 50 मिनट आई यूज्ड टू सी ऑल द क्वेश्चंस। पहले सारा क्वेश्चंस देख लो। एक बार मतलब ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको देखते के साथ लग जा रहे हैं, हाँ ये तो आ गया। इट मीन्स डोंट गो ऑन एनी सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ऐसा है वैसा। जस्ट गो ऑन द क्वेश्चंस दैट यू थिंक यू कैन डू इंस्टेंटली। जैसे होता था कि केमिस्ट्री ज़्यादा जाता है क्वेश्चन, जैसे ऑर्गेनिक के कोई क्वेश्चन ऐसे होते थे देख के साथ लगता था। इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस के होते हैं, तो उनमें आपको सिर्फ पता रहना होता है कि अच्छा हाँ ये है तो यू कैन डू दैट। समटाइम फिजिक्स में भी ऐसा क्वेश्चंस आता है जो आप देख के ही यहाँ सिर्फ आंसर कर सकते हो, मैथ्स में भी। फॉर फर्स्ट 50 मिनट्स आप एक बार पूरा क्वेश्चंस के थ्रू हो जाओ कि अच्छा ये चीज़ें ये हो सकता है। And try to get all the questions in your one page. If you have a page, then just mark all the questions that okay ये क्वेश्चन मुझसे हो सकता है, ये क्वेश्चन मुझसे हो सकता है। And after 50 मिनट, बिकॉज़ 50 मिनट्स में आपका इनफ है ये चीज़ करना, ठीक है? अगर आप थोड़ा-सा काम रहो के करोगे। बाद बाकी फिर आप उसके बाद वहाँ से शुरू करो, क्योंकि एक बार आपके क्वेश्चंस हाथ में होते हैं ना, मतलब इतना क्वेश्चंस मैं कर लिया हूँ, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा इतने अगर आगे गलत भी होगा तो आई हैव दिस मच क्वेश्चंस दैट आई हैव डिड। वहाँ से फिर आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है. तो अब क्वेश्चन मेरी तरफ से to Kushagra and Satyadarshi. तो ये बताओ कि सबसे पहले आईआईटी में अब तो होपफुली इस बार खुल जाएंगे. एक साल तो वैसे ही ऐसे चला गया है. तो what is the sport that you will be taking up? Both of you. क्या लेने वाले हो? क्योंकि सब कुछ है वहां तो. बेसिकली आई एम एट आईएससी सर, बेंगलोर। अरे बैंगलोर, आईआईसी बैंगलोर में भी चीजें तो हैं. Yes, sir. So अभी तो basically I was in campus, but I returned due to COVID. So I will take definitely cricket. I am thinking of taking cricket, but अभी उसका टूर्नामेंट शुरू होने वाला था and just COVID entered into the game. It cancelled basically there. So अभी फिर से शुरू होगा फैब में, तो देखूंगा. अच्छा, नहीं मतलब I totally understand because so one of my batchmates, IIT batchmates, he is a professor in IISc Bangalore, KS Narayan. So
ISC Bangalore, you said, so I was like, okay, great. He went to Purdue, US, did his PhD and everything, and then he's come back to serve India. So he's there. What about you, Kushagra? क्या लेने वाला है दिल्ली में? Sir, table tennis mostly. Yeah, table tennis तो indoor हो गया है. That will be like more. Sir, basketball लेना चाहूंगा तो उससे क्योंकि height बढ़ती है तो. बास्केटबॉल छोटे प्लेयर्स भी बहुत सही खेलते हैं यार, छोटे से निकल के जाते हैं. But that's true. Just try something out. There क्योंकि cultural sections are बहुत सारी चीजें हैं. There's a lot that is going on nowadays. Every now and then, as an alumni, we get कि सर इसको फंड कर दीजिए, उसको फंड कर दीजिए, ऐसा. अच्छा ठीक है, that's fine. That's the alumni body is pretty strong actually, IITs की, and that's a core area. So yeah, please do something or the other. And ISC Bangalore, research wing हो गया पूरा, but again there is a lot of scope and lot of stuff that happens in ISC, so that's there. Okay, let's take more questions. Yaduraj Yadav, I'm asking you to unmute. You can ask your question. Yes, I am audible. Yeah. ये तो रुड़की का question लगा हुआ है, if I'm not wrong. Yes. Okay. Sir, my question to both of you. Sir, कि consistently class जब चलती है, जो classes के साथ चलता है, उसके साथ साथ revision को कैसे maintain करें? Okay. Satyadarshi, what would you suggest? Okay, you have to fix a time. जैसे मैं आपको इसी बताता हूँ what I was doing. Initially सुबह के 1 घंटा या 2 घंटा अपना ऐसा था कि टॉपिक को पकड़ना है और उसको रिवाइज करना है, ठीक है. इट्स लाइक कि नहीं, मैं ऐसा नहीं था कि सब्जेक्ट रिवाइज करने जा रहा. I always used to do subject topic wise revision. That is more good, I think. सब्जेक्ट वाइज रिवीजन से अच्छा है टॉपिक वाइज करो, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे लेटेस्ट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मैं कोनिक्स का रिवीजन करने चला गया एंड कोनिक्स इज 2 hours टू रिवाइज. इट टुक्स मी बेसिकली 5 hours, ठीक है. अब अगर 5 hour मैं कोनिक्स में दूंगा ना, तो फिर अगले दिन 2-3 दिन तक वो मेरा टाइम लेगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाई मैं 1 सप्ताह या 1 महीना में सिर्फ 1 चैप्टर के टच में आ पाया. ट्राई टू फाइंड आउट द टॉपिक्स दैट आपको रिवाइज करने की जरूरत है, ओके, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जो भी है. एंड उसका आप ऐसा करो कि जो टॉपिक है आपके पास नोट्स है, उसको आप रिवाइज करने का सोचो. ट्राई टू फिक्स अ टाइम. आपको या तो दिन में करना है, रात में. आप डोंट हैव टू गो फॉर 1 hour, जस्ट गो फॉर 30 minutes आल्सो. आप 30 मिनट भी रिवाइज कर सकते हो, बट यू हैव टू फर्स्ट वो आपको फिक्स करना होगा और आपको उसके साथ ही आगे बढ़ना होगा. और हाँ, जैसे जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे आपने कोई सीट किया, आपको कोई होमवर्क मिला और आपको प्रॉब्लम आया, तो थिंक कि आपको प्रॉब्लम आया, इसका मतलब इसमें रिवीजन करने का कहीं ना कहीं जरूरत है. तो आप उस टॉपिक्स को क्या करो, लिखते चलो एंड ट्राई टू डिग अप आउट दैट थिंग कि अच्छा हाँ, इसमें ये कर सकते हैं क्या, उसमें वो. सो टॉपिक वाइज वैसे करो, दैट विल बी मोर गुड, आई थिंक. Very nicely suggested. Let's see. Asking to unmute Nitin Kumar. Good morning, good afternoon, sir. Good afternoon to you. Sir, I have a doubt that on an average, I was managed to score 100 about in advanced pattern test in our test schedules. Sir, so what can I do to make it to about 220 to 240 by making 12th more stronger? 12th more stronger, okay. Kushagra? Sir, मतलब 12th, sir, is he talking about the 12th exam or the 11th? 12th. अच्छा, तो sir, मतलब best way to do is by increasing the मतलब I mean to say सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो और जो आपकी गलतियां हो रही है उस पर फोकस करो. मतलब जो आप 100 से 220 लाना चाह रहे हो वो ग्रेजुअली कर पाओगे, वो बहुत सडन जंप नहीं आएगा. तो पहले जैसे 100 से 140, उससे फिर 160, ऐसे कर करके धीमे धीमे बढ़ाना पड़ेगा. तो आप ये कर सकते हो कि जो 12th वाला पोर्शन है उसको ज़्यादा अच्छे से कवर करो और मतलब कोशिश करो कि उसमें कोई दिक्कत ना हो. और सब्सिक्वेंटली जो रिवीजन कर रहे हो वो थोड़ा थोड़ा 11th का करते रहो, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है उसमें एडवांस पैटर्न, उसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आएगा. तो फिर
And sir, my one more doubt is that sir, the timing, जैसे सर हम लोग का क्लासेस शाम में 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो टाइमिंग मतलब कि सेल्फ स्टडी का टाइमिंग कैसा होना चाहिए, आफ्टर क्लास और बिफोर क्लास इन डे? Kushagra, if you can answer this one also. यस सर, मॉर्निंग का टाइम मेरे को ज़्यादा सूटेबल लगता था 9 to 12 का, तो मैं नाश्ता वगैरह लेकर 9 to 12 अपनी सेल्फ स्टडी कर लेता था, और जैसे जो होमवर्क वगैरह दिया जाता था वो कर लेता था, जो शाम में डिस्कस होना होता था। फिर लंच करके 1-2 घंटे और पढ़ लेता था, फिर क्लास हो जाती थी। फिर मैं रात में लेट ही पढ़ता था, मैं रात में सो जाता था। तो और अगर आप रात में पढ़ना एफिशिएंट कर पाते हो तो आप रात में पढ़ सकते हो। Basically in morning I am not able to study, that's why. अर्ली Nitin, मॉर्निंग Nitin, actually what you are asking is a more of a personal decision जो कि आपको मैनेज करना पड़ेगा. You need to manage your own time, and to do that you have to figure out what all pockets of time are there for you where you can actually do the self study. That's what Kushagra is trying to tell you. तो वो Yes, sir. pockets actually क्या है, pockets create करने पड़ते हैं. मैं to be very honest, I've shared this story. I used to keep a 6 a.m. alarm clock every single day. I used to keep a 6 a.m. alarm clock, and मेरा ऑब्जेक्टिव कभी उससे उठना नहीं होता था. मेरा ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं रात भर बैठ के पढ़ूंगा, और किसी दिन जो मुझे खत्म करना है, that's something that I've decided. I'll close this alarm clock and then go to sleep. वो बात अलग है कि 2-3 बजे इतनी गहरी नींद आती थी. I used to doze off, but you need to have a let's be very practical. Everybody has 24 hours. How you manage your time is up to you, not to anyone else. I mean, let's not reinvent other people's lives in our mind. You have to live those 24 hours, and you have to live those 24 hours. नींद आ रही है, नहीं आ रही है, बॉडी को आदत हो जाती है. That's what I feel. So pockets तो आप ही को ढूंढने हैं. No, we can just tell you, अच्छा ये pocket हो सकता है, वो pocket हो सकता है. It's about you, it's your life, and identify तो करना पड़ेगा आपको pockets, क्योंकि in order to get into an IIT you have to solve say 10,000 questions. I'm just giving a ballpark number. वो questions solve करने हैं तो मतलब इतना time तो चाहिए ही चाहिए. अब वो time तो देना ही पड़ेगा, और वो self study का time भी चाहिए ही चाहिए. So again, it's Then how much time you would suggest for self study? it depends upon your individuality, but there are times where you procrastination या ऐसे वेले बस बातें करना, क्योंकि हम लोग अक्सर ये करते हैं, and I'm talking about even the toppers, even best of the best. Sometimes you just feel like यार नहीं, और इच्छा ही नहीं हो रही है. There is no firm answer कि आप 18 घंटे पढ़िए या 8 घंटे पढ़िए या 6 घंटे पढ़िए या 2 घंटे पढ़िए. It's up to you. बट पढ़ने का तरीका, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच यू स्टडी, इट्स इम्पोर्टेंट हाउ यू स्टडी. तो वो बहुत जरूरी है. दिस इज लाइक अ प्लानिंग एक्सरसाइज ऑल्सो. इतना सब कुछ पढ़ना है 2 साल में. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मतलब हाउ विल यू रिकॉल दैट इन 3 hours और 6 hours एग्जाम. ये भी तो सोचो. प्लान नहीं करके चलोगे तो व्हाट विल ट्रिगर इन योर मेमोरी एट द टाइम ऑफ एग्जाम, वो कैसे प्लान करोगे. सो दिस इज वेयर सेल्फ स्टडी, so that you can pace yourself, you can understand, अच्छा ऐसा होगा तो this is how I will react. This is where self study is important. But एक bare minimum मैं बोलूं तो आपको at least for JEE main अगर मैं बात करता हूं तो you should be studying 4 hours 5 hours in addition to अगर मैं बात करूं आपकी जो क्लासेस आप जाते हो, इसके अलावा मैं बोलूं तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे. This is what I feel. Satyadarshi, what would you suggest? Basically sir, I suggest if you are in class, मतलब हम लोग को ऐसा बोला जाता था रेजोनेंस में, मतलब कि अगर हम लोग 12th में तो हम लोग को मिनिमम 7 hours आफ्टर द कोचिंग आपको पढ़ना ही है. मतलब उनका ऐसा था, जैसे आप 3 to 8 आपने किया, उसके बाद आपको 7 hours जो है वो कम से कम आपको करना है. मतलब इनफैक्ट आपको अगर दिन में ना कम से कम अगर डिसेंट रैंक या अच्छे रैंक के लिए आपको कम से कम 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा. दिस इज ट्रूथ. तो ऐसा है कि यू हैव टू, बट हाँ अगर ऐसा है कि आप उससे नहीं आप कर पा रहे हो तो उसका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है उससे, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद व्हाटएवर टाइम यू हैव. आपको 5 घंटे करना है, 5 घंटे करो. इफ यू वांट टू डू 6 hours 6 hours, ये नहीं है कि आप करो ही नहीं. दैट्स वेरी बैड.
तो आप हो सकता है कि आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए आपका वर्कलोड का भी एक ख्याल होना चाहिए कि हो सकता है कभी आपका वर्कलोड इतना ज़्यादा हो कि आपको ज़्यादा करना पड़े, कभी कम हो तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाओ। तो आपको वो नहीं करना है कि कम है तो रिलैक्स हो गया, ज़्यादा है तो एकदम बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली, नो। आपको एक फिक्स करके चलना होगा, उसके हिसाब से उसमें मन लगेगा फिर आपको। सेल्फ स्टडी करने समय आपको मन लगना चाहिए बेसिकली, तो ज़्यादा मज़ा आता है, उससे फ़ायदा ज़्यादा होता है, लाइक दैट। Okay. So, moving on to Aditya, asking you to unmute. Sir, sir, how to do revision? I mean, what is the best way to do revision, sir? Satyadarshi, if you can take this up. See, I think I have answered this, but रिवीजन आपको ऐसा है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो जस्ट गो फॉर द टॉपिक ओनली, डोंट गो फॉर चैप्टर्स, होल चैप्टर्स। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये फॉर सब्जेक्ट। ट्राई टू फिक्स वन थिंग। जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसे रटने वाला, अभी तक पता नहीं क्यों किसी ने नहीं पूछा रटने वाला पार्ट इनऑर्गेनिक में दैट्स द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट, कि वो आपको ज्यादा हर्डल होगा। सो अब जैसे मैं इनऑर्गेनिक का एग्जांपल लेता हूँ। इन क्लास 12 यू हैव टू, आपको बहुत ज्यादा कलर्स याद रखने होंगे आयंस के, और आपको बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो सकते हैं याद रखने पड़े, पी ब्लॉक जो भी ब्लॉक आएगा आपके पास। सो व्हाट यू हैव टू डू, अब आप ऐसा सोचोगे कि अच्छा ठीक है, एक बार मैंने एस ब्लॉक एनसीईआरटी से पढ़ा, फिर 10 दिन के बाद एनसीईआरटी से पढ़ूंगा, फिर 10 दिन के बाद पढ़ूंगा, दैट इज गोइंग टू क्लियर मी। दैट इज नॉट गोइंग टू क्लियर यू, बिकॉज आप बहुत जल्दी भूलोगे इनऑर्गेनिक में अगर आप नहीं करते हो। यू हैव टू जस्ट मेक अ फाइल ऑफ योर, जिसमें आप सब कुछ रखो। हर दिन आपके पास 5 मिनट खाली, एक बार देख लो उसको, दैट्स गोइंग टू बी दैट्स, आप उसका आपका फायदा उसमें हो जाएगा। मैथ्स का कोई फॉर्मूला है, कभी बैठे हुए आराम से तो मन में सोच रहे हैं फॉर्मूले को, दैट्स लाइक कि आपको वो थोड़ा सा हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं कि आपको रिवाइजन करने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपके पास किताब हो, कॉपी हो, लाइक दिस, नो। यू कैन आल्सो थिंक ऑफ सम फॉर्मूला इन योर माइंड कि हाँ चलो ऐसे फॉर्मूलेज हैं, ये है वो है। याद आएगा, नहीं याद आएगा तो फिर किताब देखेंगे, याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सो दैट्स आल्सो अ वे ऑफ डूइंग रिवीजन। Very nicely put, Sadarshi. Very nicely put. So yeah, that's a very neat way. Again, I always suggest individuality is very very important, because how you function, it's up to you. आप identify करो ना कि आपको वो, you know what is helping you. You have to identify it. You have to see. जरूरी नहीं है कि जो आपने फर्स्ट ट्राई में किया वो सही हो. मल्टीपल तरीके हैं, बहुत तरीके हैं. But you have to identify individually also. क्या what is working for you, what is not working for you. So that's very important. Okay. Giving Ashish, asking you to unmute. Ashish? Okay, I think so. He's just not responding. Let's go to someone else. Vanshika Jha, asking you to unmute. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning to you. Yes, sir. So basically, my doubt is like that when actually I'm standard 9 basically and moving to class 10. So like I used to study for higher concepts, like for 11 the foundation part. So how to manage with the class studies? I want to ask that. Okay, Kushagar. Sir, is she asking about foundation? Yeah, Yes, sir. Yes. Yeah, Foundation. Sir, can she please repeat the question? बेसिकली मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं फाउंडेशन की पढ़ाई कर रही हूँ तो उसमें मेरा मतलब एक्चुअली कभी-कभी होता है कि बेसिक्स थोड़ा सा वीक रह जाता है। जैसे कि मैंने हायर स्टडीज की तो कर ली, बट हो रहा है कि क्लास के स्टडीज में थोड़ा सा मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज करते थे आप? मेरे हिसाब से फोकस आपको 9th और 10th के सिलेबस में थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए फाउंडेशन से, क्योंकि एनटीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी वही पूछा जाता है। तो आप जो जेई किए रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो मतलब जैसे मैंने तो 11th में स्टार्ट किया था। मैंने मतलब मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था तो मैंने मैथ्स एक्स्ट्रा पढ़ी थी 10th में बस, और फिजिक्स केमिस्ट्री 11th 12th में करा। तो मैं कहूँगा कि आप क्योंकि एनटीएससी में फिर सोशल साइंस भी आएगा और मेंटल एबिलिटी भी है, तो आप अगर 9th में हो तो 10th में तो वो पूछा जाएगा आपसे। तो बेटर है कि वो उस पर फोकस रखो, क्योंकि वो काफ़ी मतलब रेप्यूटेड टाइप का एग्जाम है एनटीएससी। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दो अपने जो चल रहा है क्लास में। और जो वैसे तो जो साइंस है जो पढ़ाया जाता है 10th में वो सिंपल ही होता है, तो थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो वो कवर हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आपने 11 से स्टार्ट किया था तो उसमें कवर हो गया था? जैसे मेरे टाइम पे तो ऑफलाइन क्लासेस ही होती थी, तो मतलब मैथमेटिकल टूल्स वेक्टर्स ऐसे करके पढ़ाते थे, और केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, तो
मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी। Okay. तो लेकिन अब ऑनलाइन वाले सिनेरियो में शायद थोड़ा ज़्यादा जल्दी कवर करवा देते हो, तो वो हो सकता है। तो वो 10th के लास्ट में आप देख सकते हो 11 के स्टार्टिंग के चैप्टर्स, तो थोड़ा एक हेड स्टार्ट मिल जाए। इसी बात पे मुझे एक जोक याद आया, छोटा सा है। मेरे पास एक बच्चा आया कि सर मेरे टीचर ने मुझे कहा है कि सर मेरे बेसिक्स बहुत वीक हैं, सर मुझे किताब बता दो बेसिक्स लिखे कहाँ हैं। कोई कैसी किताब बता दो, ऐसी कोई किताब है नहीं। बेसिक्स आर बेसिक्स, एवरीबडी डिफाइंस देयर ओन बेसिक्स। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट वंशिका, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, किसी एक बच्चे के साथ हम लोग बैठे थे, फंक्शंस सॉल्व कर रहा था मैं, फंक्शंस के पर्सपेक्टिव पे बात चल रही थी, लिमिट कंटिन्यूटी होगी शायद। व्हेन वी ट्रेस डाउन कि ये उसको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, the concept of taking LCM where you know algebraic expressions के perspective पे he was like मुझे आता ही नहीं है ये, I don't know. So the root problem was basics as the concept of taking LCMs of functions was like कैसे करूँ मैं, ये कैसे होता है. So you know these are very small things but they hurt you in the long run. आपको functions आता है, limit आता है, continuity सब कुछ आता होगा, yes, but LCM नहीं आता तो मतलब क्या करूँ, मतलब what do I do? So just an example that I'm trying to give you. With that, did Kushagra answer your question, Vanshika? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay, great. Thank you, sir. Taking the last question from the people who have raised their hands, let's say Deepak, ask you to unmute. Deepak, you can ask your question. यस सर। सर मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बात कर सकते हो। जैसे कि सर अपना जो जेईई मेंस और एडवांस का एग्जाम क्लियर होने के बाद जो इंग्लिश के अंदर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्या आगे? अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है। सो ये सवाल मेरे हिसाब से कुशाग्र और शायद सत्यदर्शी कुछ बताना चाहोगे, फिर मैं बताता हूँ IITs में क्या होता है, वो बता दूंगा मैं। तो सत्यदर्शी, व्हाट वुड यू सजेस्ट? मतलब मुझे पहले एक बार कंफर्म होना है कि वो कॉलेज के लिए पूछ रहा है कि क्वेश्चन को समझने के लिए इंग्लिश का सोच पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि जब ये अभी पढ़ के, अच्छा पूछो दीपक, खुद ही पूछो। दीपक पूछो। कॉलेज के लिए लॉट ट्रबल करेगा, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता देता हूँ। तो आई मीन ISC, सो देयर एवरीथिंग, मतलब बिकॉज बच्चे बहुत सारे साउथ से आते हैं, तो एकदम कंपलसरी है कि इंग्लिश में ही टॉक करना है, बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड योर, मतलब वो आपका हिंदी नहीं समझते हैं। सो नाउ इफ यू आर नॉट, मतलब ऐसा है कि अगर आप नहीं समझ रहे हो लेटर सपोज इंग्लिश, तो मेंस एडवांस तक कोई टेंशन नहीं लेना है उस चीज का। बट आफ्टर दैट यू हैव इनफ टाइम बिटवीन रिजल्ट एंड एग्जाम टू लर्न इंग्लिश, टू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इन कॉलेज यू हैव टू डू दैट। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज ले रहे हो। अगर आप IIT मद्रास ले रहे हो तो आपको तो करना ही पड़ेगा। बट हाँ ठीक है, अगर आप IIT दिल्ली ले रहे हो तो डेट इज कैजुअल, वहाँ पे आपको हो सकता है आप काम करो। बट बिकॉज अब इंडिया में एक लैंग्वेज है नहीं ना, मल्टीपल लैंग्वेजेज हैं, सो वहाँ के प्रोफेसर्स को भी उस टाइप का ख्याल रखना पड़ता है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, बट डोंट टेक दैट टेंशन नाउ। यू हैव मच, मतलब आपके पास बहुत टाइम होगा, आप एडवांस से रिजल्ट के बीच में सीख सको। Very nicely said. Kushagra, any words from you? यस सर, मेरे कॉलेज में IIT दिल्ली में वो लोग लैंग्वेज मेंटरशिप सेशन रखते हैं, जिसमें हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें इंग्लिश एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। मतलब उन्होंने बुक बना रखी है, तो वो एकदम लेटर्स और वर्ड से चालू करते हैं अगर कोई एकदम नया सीख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। बस हाँ अलग से टाइम निकालना पड़ता है, और बाकी कॉलेज में वाले उनको पूरी फैसिलिटी देते हैं इंग्लिश सिखाने के। दीपक, तुम्हें एक अच्छी चीज बताता हूं मैं कि IITs में ये प्रावधान आज से नहीं है, मेरे टाइम से है। और कई लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते थे उनको तो हिंदी छोड़ो इंग्लिश भी नहीं आती, तो अब बात कैसे करो। जैसे जो लोग अफ्रीकन कंट्रीज से आते थे, रुवांडा एंड युगांडा से जो लोग आते थे, लिटरली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, उनकी हिंदी स्पीकिंग क्लासेस भी लगती थी, हिंदी की क्लासेस भी लगती थी कि अच्छा हिंदी भी सीख लो, सो दैट दे आर एबल टू कम्युनिकेट। बट यू नो कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है, और ये शायद बहुत बात की बात है, ये सब सोचना भी नहीं चाहिए। अभी तो सबसे पहले एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज द कोर क्रक्स। हाँ, एक जगह तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, वो मैं बहुत क्लियरली मेंशन करता हूँ कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो है जो तुम्हारे ब्रांच की बुक्स होंगी, जो नॉट द बुक्स जो आज तुम्हें मिल रही है, वो इंग्लिश में ही लिखी हुई मिलेंगी, क्योंकि तुम लाइब्रेरी अगर जाओगे या कहीं पे सर्च भी करोगे, उनका कोई एडिशन है नहीं. सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यूल फेस. इवन द प्रोफेसर्स जो बताएंगे, ठीक है, उसका जो कोर कंसेप्ट है, प्रोफेसर्स हिंदी में बता भी देंगे, चलो ठीक है. अगर IIT मद्रास जाओगे तो बात अलग है, जैसा सत्यदर्शी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, वहां तो नहीं आती है. मैं चेन्नई में काम कर चुका हूँ इन्फोसिस में, तो मुझे पता है वहां पे लोगों को हिंदी नहीं आती है, एब्सोल्युटली नहीं आती है. बट जनरली प्रोफेसर्स भी इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, दे विल नॉट टीच यू इन हिंदी. और जो बुक सजेस्ट करते हैं या आपके जो चीजें, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट इज ओके. जो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा ना, आप ये मान के चलो 3 महीने 4 महीने में आपको जो गाने, इंग्लिश के गाने समझ में नहीं आते, लगता था कौन चिल्ला रहा है, वही गाने बहुत अच्छे लगने लगेंगे. ऐसा भी होता है. गलत तो नहीं बोल रहा कुछ आगे? ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज लाइफ. तो ये एक्सपोजर का फर्क होता है और बहुत जल्दी चीजें चेंज हो जाएंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. अभी तो फोकस इस पे करना है. आई थिंक सो इट्स अबाउट टाइम. 12 बज गए हैं. आई नो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. वी विल ट्राई टू gauge maybe Kushagra and Satyadarshi once again, and thank you all for joining, and thank you both of you, Kushagra and Satyadarshi. Last words from both of you. Kushagra, anything you want to say and wish everybody best of luck for the JEE mains exam, जब भी आएगा, जब भी होगा. Anything you want to say? Yes, sir. I want to wish them best of luck for both JEE Main and Advanced, and would like to advise them to take the major focus on JEE Advanced, as it is the way for IIT. Okay. If Great. they want to decide. Great. Satyadarshi, any last words from you? Yes sir, मतलब आपका एडवांस मेंस अभी आने वाला है, तो यू आर गोइंग टू, मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आप लाइफ अभी पास करोगे इस साल, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. सेकंड थिंग, एक चीज मैं मतलब ये बोलूंगा कि जो ऐसे अभी मेहनत करने का आदत होगा ना, मतलब आदत जो बनेगा जेई का, सो ऐसा मत आप लोग सोचिएगा कि जस्ट कि बस जेई तक का मेहनत है, बाद बाकी तो ठीक है. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. मेहनत में मन लगाना सीख लीजिए. दैट्स गोइंग टू बी मोर यूजफुल. और ये अभी इस पार्ट में तो आपको हेल्प करेगा जो आप इस साल जाओगे, आफ्टर दैट भी आपको हेल्प करेगा. सो जस्ट ट्राई टू लव द लेबर. Very nicely said, both of you. बहुत बढ़िया. And it was a great session to just talk to you guys and think out, and you've shared I don't want to say trade secrets, but it's core. This is how you think, this is how you are as an individuals, and this is what is the objective of Meet the Toppers. So thank you all for joining, and we'll keep you updated. We'll have more sessions like this, and we'll again we at Resonance keep on engaging everybody so that आपको मौका मिले directly toppers से मिलने का, बात करने का. So thank you all, and thanks for joining. Happy learning, enjoy, and be safe at home. Okay, take care. Bye bye. Thank you all.